Yes, hello, good afternoon. Yes, hello, good afternoon. Hi, hello, all the students. Again, in the IVM Academy, right? We are in IVM Academy. We are studying here the third part, right? Cell and its structures. ये जो हमारा ये वीडियो है या जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है उसका हम थर्ड पार्ट आज देख रहे हैं. ठीक है, पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने सेल के पार्ट्स देखे, राइट. फिर सेकेंड पार्ट में हमने फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ मतलब सेल के बारे में पढ़ा. सॉरी, फर्स्ट पार्ट में हमने सेल के बारे में देखा, सेल के पार्ट्स के बारे में देखा, सेल की डेफिनेशन देखी, सेल के फंक्शंस देखे. ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन वी नॉट शोन यू द पीपीटी. सी दिस, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड मतलब जो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई. इसका एक करेक्ट और एकदम मीनिंगफुल डेफिनेशन है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी लिविंग बीइंग्स फाउंड एवरीवेयर. व्हाट आर दे आर? Microorganisms are the tiny living beings found everywhere in soil, in water, air, and even extreme climates. Second one, internal symbiosis. They live inside our bodies. For instance, gut bacteria aid in digestion and play a role. See, we were looking for the microorganisms. Like, what are the microorganisms? As we were on the internal symbiosis, they live inside our bodies. For instance, gut bacteria aid in digestion and play a role in our daily. As in last part, we see that microorganisms are the decomposers or degraders. Same point has given nature's recyclers. And what is the relation of them with us? The relation is of my bacteria. In our body, in our gut, there is one bacteria which helps for digestion. That is relation with our body to the bacteria. Then human connection from food to fertility. Microbes are used in fermentation and nitrogen fixation for healthy soil. Microbes are used for nitrogen fixation and used in fermentation for bread and curd. As you know, bread and curd में microbes use होते हैं, right? ब्रेड बनाते समय जो ईस्ट डाला जाता है वो ईस्ट जो है वो फंजाई है. फंजाई कौन सी कैटेगरी में आता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आता है. देन सिम्बायोटिक मिरेकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. 1, 2, 3 and 4. Last, the result. Now what is the nitrogen fixation? First we will understand. Okay, first we will understand nitrogen fixation क्या है. In last lesson, last part, we studied that हमें आगे का देखना है, सेल के पार्ट्स देखने हैं. लेकिन सेल के पार्ट्स देखने से पहले हम माइक्रोस्कोप का हमें पढ़ना था. तो माइक्रोस्कोप को पढ़ने किसके लिए यूज होता है माइक्रोस्कोप? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए माइक्रोस्कोप यूज होता है. दैट्स व्हाई वी टेकन द पॉइंट ऑफ माइक्रोस्कोप. वी एडेड दिस पॉइंट्स आफ्टर द पार्ट 1, राइट. सी, नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स द whenever the plant is taking nitrogen, right? Have you anyone seen that farmers are giving the chemical fertilizers, nitrogen fertilizers, or they are giving the nitrogen, liquid form nitrogen in the plant's root? Why they are doing this? Because plants are not able to take nitrogen directly.
they are not able to take nitrogen directly. For that, they need the rhizobium bacteria, which is present. Rhizobium bacteria is the microorganism. So this is the relationship with the soil or earth. So ये relationship हमें देखते हैं. ये देखते हैं. राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया है. और बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है जिसे हम नोड्यूल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? NODULES, नोड्यूल्स. छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड द नोड्यूल्स. इन दीज नोड्यूल्स देयर आर द प्रेजेंट द राइजोबियम बैक्टीरिया which help to take that nitrogen in the nodule, and that rhizobium bacteria converts that nitrogen, the air nitrogen, in the usable form. Okay. See, rhizobium is the bacteria, right? So rhizobium is present in the nodule. So as I said, nitrogen is turned into the usable form by this rhizobium bacteria which is present in the nodule. But why then the farmers are giving nitrogen in liquid form to the plants? Because these nodules are only present in the leguminous plants. What are the leguminous plants? You have to find out and comment me after the session or the video. Okay, you have to find out the leguminous plants. These leguminous plants are also known as the legumes. I will give you one example of leguminous plants. Leguminous plants example is the leguminous plants example is the cowpea. cowpea को हिंदी में चौली या चौली जो होते हैं वो भी कहते हैं. CHWLI, चौली. वो जो सब्जी है, वो जो पल्स है, वो it is known as the cowpea. Then atmospheric nitrogen trap. Inside these nodules, the bacteria trap inert nitrogen gas N2 from air packed pockets in the soil which plants cannot use directly. Conservation and growth. The bacteria convert the nitrogen in ammonia, making it available for the plant to grow better without chemical fertilizers. What is the ammonia? Ammonia is that usable form, nitrogen usable form. Ammonia is the usable form which is the simplest form of nitrogen. मतलब वो जो अमोनिया है वो प्लांट्स लेते हैं और उससे वो प्लांट्स अपनी रूट डेवलपमेंट या लीव्स डेवलपमेंट करते हैं एक्सेट्रा. अमोनिया ध्यान में मत रखो, सिर्फ नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. आप अमोनिया भी ध्यान में रख सकते हो. मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द प्लांट टू ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स. एज आई सेड कि जो है हमारे जो फार्मर्स है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स देते हैं, उससे अच्छा है कि ये लेग्यूमिनस प्लांट्स वो एज अ सीजन बाय सीजन जो है वो क्रॉपिंग उन्होंने जब करेंगे तभी ये होगा. ये कैसे होगा? सीजन बाय सीजन करेंगे. कैसे? आपने देखा होगा कि ऐसे कोई फार्मर्स होते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स को ग्रो ही नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल ऐसे फार्मर्स होते हैं जो पहले एक साल के लिए वीट ग्रो करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करते हैं, फिर से वीट ग्रो करते हैं या अदर ग्रेन ग्रो करते हैं, फिर से लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करते हैं सीजन बाय सीजन. व्हाई? बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट्स रिलीज नाइट्रोजन, यूजेबल नाइट्रोजन इन द सॉइल, और उसी सॉइल में अदर क्रॉप लगाया या जो दूसरा क्रॉप है वो हमने लगाया तो वो भी क्रॉप नाइट्रोजन से भरपूर होगा और उससे नाइट्रोजन केमिकल फर्टिलाइजर्स से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए मोर एंड मोर फार्मर्स यूज दिस सीजन क्रॉप ट्री, सीजनेबल क्रॉप ट्री. They use this trick for the growing leguminous plants in that season and the grain plants in another season. Understood?
The result, healthy soil. What is the result? Healthy soil. Result, healthy soil means growing legumes increases nitrogen levels naturally, benefiting subsequent crops in rotation. Legumes क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं नाइट्रोजन लेवल्स और सब्सिक्वेंट क्रॉप्स को रोटेशन में ग्रो करने के लिए यूजफुल करते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। अभी माइक्रोअल्गी द फोटोसिंथेटिक बायोमास, ठीक है, ये हमारा जो है सेल का जो पॉइंट है उसका होने के बाद हम देख लेंगे। अभी देखते हैं माइक्रोस्कोप। हमने पिछले पार्ट में देख लिया, ठीक है। मैं आपको बोलने वाला था कि माइक्रोस्कोप कैसा था। देखो ये होता है माइक्रोस्कोप डायग्राम। Robert Hooke uses a self-designed microscope to observe a thin slice of cork. He sees small box-like compartments and names them cells. जैसे मैंने पार्ट 2 में बताया था। Now in last part we said in part 1 मैंने बोला था कि आप अगले सेशन में हम सेल्स के टाइप्स देखेंगे। सेल्स के 2 टाइप्स है, नर्व सेल एंड मसल सेल, which is also known as the neurons, ठीक है। नर्व सेल को न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। अभी नर्व सेल क्या होता है और मसल सेल क्या होता है। मसल सेल expands and contracts seamlessly to facilitate body movement. ये क्या है? ये मूवर है और ये मैसेंजर है। द मूवर एंड द मैसेंजर, इसमें इसका मतलब क्या है? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैंने बोला था कि मैसेंजर और मूवर में डिफरेंस क्या है। पहले सेल के टाइप्स देखते हैं। सेल क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस यूनिट का 2 टाइप्स है जिसका नाम है मैसेंजर, द मूवर। ये जो 2 टाइप्स है, द मैसेंजर और मूवर, ये टाइप्स नहीं है। द नर्व सेल एंड द मसल सेल, ये 2 टाइप्स है। इनको एक आइडोम दिया गया है या एक जो बोलते हैं एक निक नेम दिया गया है। उनको उनके फंक्शन का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है कि ये फंक्शन करता है नर्व सेल। नर्व सेल which is also known as the neuron, which function is the elongated branches reach different parts of the body to pass messages quickly. ये जो different types of branches है, elongated branches, ये different parts of body में, ये एक सेल है, ये elongated branches जो है वो different parts of body, blood में flow होते हैं ये cells, different parts of body में जाके ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाके ये सेल्स है ना, इनमें से न्यूरॉन्स भी होते हैं या नर्व सेल भी, न्यूरॉन्स बोलो, यू विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ये सब पार्ट्स में जाने के लिए उनको यूजफुल होता है, ठीक है। वॉइस इज ऑडिबल एंड द कैमरा इज प्रॉपर, सब कुछ दिख रहा है। कैन आई ऑल्सो विजिबल इन दैट कैमरा, माई फेस, ओके। सो इसमें जो है ये फ्लो होता है ब्लड के साथ न्यूरॉन्स, ठीक है। और इनका काम होता है कि हमारे बॉडी में मैसेज पास करना। टच किया, पता चल गया हमें टच किया है किसने, तो मैंने ही टच किया पर मुझे पता चल गया टच किया। सो जो ब्लड में नर्व सेल्स होते हैं वो इस टच सेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं टिल द ब्रेन। एज 5th 4th यू हैव स्टडीड, आई थिंक सो 4th और 5th क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको ये पता होता है, ठीक है। द मूवर, द मसल सेल, ठीक है। द मूवर मसल सेल, मसल सेल क्या है? विच एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स seamlessly to facilitate body movement. इन मसल सेल्स में ही
हमारी सेल के सब फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। इन सेल्स में भी परफॉर्म होते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस आपको फर्दर पॉइंट में या इस सीरीज में, सेल एंड स्ट्रक्चर की सीरीज के नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको लाऊंगा कि नर्व सेल और मसल सेल के पार्ट्स क्या है और उनका फंक्शन क्या है और उनके पार्ट्स के फंक्शंस क्या है। ये इन पे मैं आपको एक सीरीज लाऊंगा। ये हमारे सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर की सीरीज चल रही है, तो वी विल कंटिन्यू। Expands and contracts seamlessly to facilitate body movement. Cells do not look identical. A cell's unique shape, size and structure directly allow it to carry out the specific job. इनके सेल के शेप, साइज, कलर और स्ट्रक्चर पे इनको सभी उनके फंक्शंस कैरी करने के लिए इजी जाता है। ठीक है, सेल्स के बारे में पता चल गया। I have question for you from the part 1 and part 2. What is the zooming limit of ठीक है, ये मैंने बदल दिया। ठीक है, what is the zooming limit of microscope? What is the zooming limit of microscope? आप आंसर दे दो, मैं तब तक आपको आपकी जो स्लाइड है उससे मैं What is the zooming limit of microscope? कमेंट में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट, इट इज द what is the cell's definition? I have pronounced in this video also. So, okay, what is the cell's definition? What is cell? आपको definition देनी है। And which part of cell is used to emphasize protein? Which part of cell is used to emphasize protein and which part of cell is used to dispose the waste of the cell? ये 4 क्वेश्चन ध्यान में रखने। आई एम रिपीटिंग। व्हाट इज द लिमिट ऑफ जूमिंग ऑफ माइक्रोस्कोप? व्हाट इज सेल? ठीक है, विच पार्ट ऑफ द सेल एंथसाइज प्रोटीन और विच पार्ट ऑफ द सेल इज यूज्ड टू एंथसाइज प्रोटीन। और 4th क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेल और विच पार्ट ऑफ द सेल is used to dispose the waste of the cell. ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। मैं आपके कमेंट बॉक्स में भी ये क्वेश्चंस डाल दूंगा, आपको उसका आंसर देने हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, आपको पहले मुझे कंफर्म कर देना है those who are not understand the cells, types of cells, neurons और मसल सेल्स, कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं फिर से शॉर्ट वीडियो में आपको वो जो है मसल सेल और नर्व सेल क्या होते हैं मैं आपको समझा दूंगा। स्टेयरकेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। स्टेयरकेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मतलब complexity is exponential. You begin life as a single fertilized egg cell that repeatedly divides to form trillions of specialized units. जैसे मैंने बोला कि हमारे सेल्स ट्रिलियंस बिलियंस में हो सकते हैं, तो आप हमारी जो बॉडी होती है ये एक सेल से चालू होकर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स तक जाती है। ये यहाँ पे दिया है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी मतलब वास्ट थिंग, कॉम्प्लेक्सिटी और इज द एक्सपोनेंशियल, बहुत एक्सपांड होती है। ठीक है, क्या है इसकी एक्सपांडेशन? सेल द बेसिक फंक्शनल यूनिट, देन टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर। सेल जो होता है ये सिमिलर सेल्स में एक टिश्यू बनता है। सेल, एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल जुड़ के
not in the unicellular organisms, because unicellular organisms are organisms which do not have one and more cells, they have only one cell. This is for the multicellular organisms. एक सेल दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के एक टिश्यू बनाता है, फिर एक टिश्यू जुड़ के ऑर्गन बनाता है, एक ऑर्गन 5-6 ऑर्गन मिलके ऑर्गन से, ठीक है। मैं बोल रहा था कि सेल जो होता है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट, और एक सेल को और एक सेल जुड़ेगा और एक सेल जुड़ेगा तो वो टिश्यू बनेगा, व्हाट इट विल बी, टिश्यू बनेगा। और एक टिश्यू और एक टिश्यू के साथ और एक टिश्यू के साथ जुड़ेगा तो वो एक ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन और एक ऑर्गन के साथ अदर ऑर्गन्स के साथ जुड़ के वो ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ऑर्गन सिस्टम्स 2-3 ऑर्गन सिस्टम 3 to 7 6 to 5 to 6 ऑर्गन सिस्टम्स है हमारे बॉडी में। दैट ऑर्गन सिस्टम्स togetherly form the organism. This is the cycle from the cell to the human being or the organism. Welcome to the cellular factory. A cell is not just a bag of liquid, it is a highly coordinated working system. ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, लेट्स रिकैप। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, दे आर द टाइनी लिविंग बींग्स, ठीक है, जो हम हमारे नेकेड आई से देख नहीं सकते। इंटरनल सिम्बायोसिस, दे लिव इनसाइड आवर बॉडीज, फॉर इंस्टेंस गट बैक्टीरिया, मतलब हमारी जो गट बैक्टीरिया है, उन जो गट बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रेजेंट होती है उनके साथ हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारी रिलेशन देख सकते हैं, हम इंटरनल सिम्बायोसिस उससे कर सकते हैं। नेचर्स रिसाइकलर, एज इन पार्ट 2 मैंने जैसे बताया था कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो हमारे सॉइल को डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकल करके न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं। ह्यूमन कनेक्शन, फूड से लेके फर्टिलिटी तक, फर्मेंटेशन तक, फूड फर्मेंटेशन से लेके नाइट्रोजन फिक्सेशन तक, ये सब कुछ साइकिल जो है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, दैट इज द बैक्टीरिया। विच बैक्टीरिया, राइजोबियम कॉलोनाइजेशन। राइजोबियम बैक्टीरिया इन द सॉइल रिस्पॉन्ड टू केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम काउपी रूट्स एंटरिंग थ्रू रूट हेयर्स टू फॉर्म स्पेसिफाइड नोड्यूल्स। मैंने जैसे बताया राइजोबियम किस में प्रेजेंट होता है, नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और वो नोड्यूल्स नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेरिक उसको ट्रैप करते हैं और उसको यूजेबल फॉर्म या एमोनिया में बदल के वो प्लांट्स के लिए यूजफुल बनाते हैं, जिससे कि फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज ना करें। ठीक है, देन दे गेट द रिजल्ट एज अ हेल्दी सॉइल विच नीड रिजल्ट्स फॉर द सब्सिक्वेंट क्रॉप रोटेशन। मतलब एक करके क्रॉप वो लगा सकते हैं, एक बार लेग्यूमिनियस और एक बार ग्रेन क्रॉप। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सेल के टाइप्स, मैसेंजर सेल, मूवर सेल, मतलब नर्व सेल और मसल सेल। नर्व सेल का काम है टू ट्रांसपोर्ट द मैसेज एंड मसल सेल का काम है टू फैसिलिटेट बॉडी मूवमेंट। ठीक है, फिर हमने स्टेयरकेस देखी कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। देन वेलकम टू द सेल्यूलर फैक्ट्री। ये जो पार्ट है ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 4 में देखेंगे। पार्ट 4 में क्या क्या देखेंगे, ये देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। ये 4 पार्ट्स के डिटेल्ड फंक्शन उनके हमारे स्ट्रक्चर डिटेल में हम देखेंगे। फिर गोल्गी एपरेटस, लायोसोम्स, ल्यूसोसोम्स, उसे ल्यूसोसोम्स कहते हैं, ध्यान में रखो। प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट, वो वैक्यूल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्लांट एनिमल सेल का डिफरेंस, ये हम पार्ट 5 में देखेंगे। और पार्ट 6 में डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, सेल डिवीजन, रिकॉल मैप,
और यू आर अ वॉकिंग गैलेक्सी, ये पार्ट 6 में लिखेंगे। ऐसे हमारे पार्ट 6 होंगे और 4th पार्ट में हम ये देखेंगे, 5th पार्ट में हम और 3 पार्ट्स देखेंगे सेल के, और 6th पार्ट में हम लास्ट रिवीजन ऑफ होल टॉपिक करेंगे एंड देन आवर सीरीज विल एंड। ओके, बिफोर दैट लेट रिकॉल योर होमवर्क। ठीक है, आपका होमवर्क रिकॉल करते हैं। क्या है होमवर्क? व्हाट इज द लेग्यूमिनस प्लांट्स? यू हैव टू फाइंड आउट द लेग्यूमिनस प्लांट्स वेरेवर यू विल गेट दैट आंसर फ्रॉम दैट एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। देन क्या बोला था कि मैसेंजर्स नहीं, 4 क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 के रिलेटेड बताए थे। व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, और व्हाट इज द सेल, डेफिनेशन बतानी है, और which part of cell is used to synthesize protein, or which part of cell is used for waste disposal of the cell। ये 4 क्वेश्चंस और व्हाट इज लेग्यूमिनस प्लांट्स ये मैंने आपको बोला था। सो आपको ये कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स दे देने हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।